Hey guys, welcome to my dream channel. In this video, we will talk about Indian Council Act of 1909, Government of India Act 1919, Simon Commission of 1927, Nehru Report of 1928 and Communal Award of 1932. If you haven't watched my previous video, तो प्लीज़ previous video देख लीजिए क्योंकि previous video देखने के बाद ही you will be able to understand this video. So guys, please like, share and subscribe the channel, and now let's start with the video without wasting any time. So first of all, we will talk about Indian Council Act of 1909. So let's start with the what were the important facts of Government of India Act 1909. दिस एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. वाई? क्योंकि ये जो एक्ट है ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है. मॉर्ले और मिंटो दो आदमियों के बीच के एक एग्रीमेंट से दिस एक्ट वॉज पास्ड. लॉर्ड मॉर्ले एट दैट टाइम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड लॉर्ड मिंटो वॉज एट दैट टाइम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. ओके, सो इस एक्ट के वट वर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट. ओके, so this act increased the size of legislative councils, both central as well as provincial level. The members in the central legislative council was raised from 16 to 60. Earlier जो membership थी वो 16 थी, but now with this act जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप है उसको बढ़ाकर 60 कर दिया गया. ओके, and another important thing is it increased the deliberative function of legislative council at both level, central as well as provincial level. Now members can discuss on budget and more resolution and supplementary questions can be asked. उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो डेलिब्रेटिव फंक्शन है उनको बढ़ा दिया गया. अब वे बजट पे भी डिस्कशन कर सकते हैं, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस. Okay, so this act is very important. Why? Because it was for the first time in this act Indians were allowed to join the executive council of viceroy and governors. Earlier Indians were only allowed to join legislative council, but now with this act they were allowed to join the executive council. So Satyendra Prasad Sinha Indian थे, and Satyendra Prasad Sinha became the first Indian who joined the Viceroy's Executive Council. और उनको Viceroy की Executive Council में he was appointed as law member. Okay, and another important point of this act is it introduced a system of communal representation for Muslim by accepting the concept of separate electorate. सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? मतलब कि जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो आप उसी कम्युनिटी को वोट देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अंडर दिस सिस्टम द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स. ओके, सो दिस एक्ट लीगलाइज द कम्युनलिज्म. फॉर द फर्स्ट टाइम इस एक्ट के थ्रू कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया गया, एंड लॉर्ड मिंटो came to be known as the father of communal electorate in India. Okay, now we will talk about Government of India Act 1919. When we talk about Government of India Act 1919, so this was also very important act. Okay, so this act came into force in 1921, and this is also known as Montagu-Chelmsford Reform. Why? Because at that time Montagu was Secretary of State for India and Lord Chelmsford was the Viceroy of India. In दोनों के बीच the agreement was held, and then the act was passed which came to be known as Montagu-Chelmsford Reforms. Montagu-Chelmsford Reforms act भी कह सकते हो. Now when we talk about the features of the act, इसके जो है बहुत ही important features है, इसमें बहुत सी चीज़ों को add on किया गया. For example, it relaxed the
central control over the provinces by demarcating and separating the central subject from that of provincial subjects. सेंट्रल और जो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स थे उनको जो है डिमार्केट किया गया, अलग कर दिया गया. नाउ द सेंट्रल एज वेल एज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर ऑथराइज टू मेक लॉज ऑन देयर respective list of subjects. Okay, and further it divide the provincial subjects into two parts: transferred and reserved. When we talk about transfer subject, the transferred subjects were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative council. Okay, and when we talk about reserved subjects, on the other hand, were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council. जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे उनको जो है गवर्नर जो है अपने मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के थ्रू देखेगा और ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल. और जो सेकंड रिजर्व सब्जेक्ट है उसमें गवर्नर एंड उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल. एक जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है उसमें गवर्नर और उसकी और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि उसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए. और ऑन द अदर हैंड रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर और उसके मिनिस्टर्स उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए. ओके, एंड दिस सिस्टम, दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायची. ओके, and in this act it was for the first time that bicameralism and direct election was introduced in the country. बाईकैमरलिज्म में क्या होगा? बाईकैमरल लेजिस्लेचर होगा which will consist upper house, that is council of state, and lower house, that is legislative council. Okay, and the majority of members of both houses were chosen by direct elections. बाईकैमरल लेजिस्लेचर होगा जिसमें कि अपर एंड लोअर हाउस होंगे और उन लोगों को जो है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है इलेक्ट किया जाएगा. ओके, and another thing is it extended the principle of communal representation by providing separate electorates for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. सेपरेट इलेक्टोरेट जो सिस्टम था उसको इसने फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया. अर्लियर जो है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो है दैट वाज ओनली इंट्रोड्यूस्ड फॉर मुस्लिम्स. इट मीन्स दैट मुस्लिम members were to be elected only by Muslim voters, but now this communal representation was extended to Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. It means Sikhs जो है Sikhs को elect करेंगे, Indian Christians को elect करेंगे, Anglo-Indians को elect करेंगे और Europeans जो है Europeans को elect करेंगे. इसके थ्रू जो है communal representation को extend किया गया. And another important fact of this act was it granted franchise to limited number. Limited number means limited number of people on the basis of property tax and education. इसने जो है फ्रेंचाइज को एक लिमिटेड नंबर तक इंट्रोड्यूस किया, बट जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, जो टैक्स देने के लायक होगा और जो एजुकेटेड होगा उन्हीं को जो है फ्रेंचाइज इसके थ्रू प्रोवाइड की गई. Another important is that it provided for the establishment of a public service commission, and hence due to this act central public service commission was set up in 1926 for recruiting civil servants. एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जो सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करेगा और इस एक्ट के थ्रू 1926 में एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, नॉट प्रोविंशियल, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल जो है पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया इन 1926 में, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रिक्रूट सिविल सर्वेंट्स. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दिस एक्ट separated the provincial budgets from the central budgets and authorized the provincial legislature to enact their budgets.
जो है पहले सेंट्रल और प्रोविंशियल, सेंटर का और प्रोविंस का जो बजट है उसमें कोई सेपरेशन नहीं था, वो इकट्ठा पेश किया जाता था। बट नाउ देयर वाज सेपरेशन, नाउ बोथ विल प्रिपेयर देयर बजट, सेंटर भी और क्या कहते हैं प्रोविंसेस भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ऑफ 1920। व्हेन वी टॉक अबाउट साइमन कमीशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, उसमें एक प्रोविज़न था कि आफ्टर 10 years अ कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नेंस स्कीम एज सजेस्टेड बाय द एक्ट ऑफ 1919। कि गवर्नमेंट ऑफ, इसमें ही एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविज़न था कि ठीक 10 साल बाद यानी कि 1929 में एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो देखेगा कि कितनी प्रोग्रेस हुई है इंडिया में, कितनी गवर्नेंस, कैसी गवर्नेंस, जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है, कंट्री की प्रोग्रेस को चेक करेगा 1929 में। बट व्हाट हैपेंड, इसको जो है 2 साल पहले, 2 years बिफोर इट वॉज शेड्यूल्ड, इसको 2 साल पहले 1927 में ही जो है अपॉइंट कर दिया गया था। सो इट वॉज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, statutory commission, 7 member commission, which was appointed under the chairmanship of Sir John Simon. ओके, इसका मेन फंक्शन था कि इसको एक रिपोर्ट तैयार करनी थी कि व्हेन इंडिया विल अडॉप्ट देयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया की कंडीशन कैसी होगी। ओके, तो इस चीज़ के लिए जो है इस कमीशन को 1927 में अपॉइंट किया गया और 8 नवंबर 1927 में। ओके, और ये जो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की वर्किंग के लिए उसको देखने के लिए अपॉइंट किया गया, टू एग्जामाइन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो ये जो कमीशन है इट वॉज लैंडेड मुंबई में, जो ये 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। बट इट वॉज बॉयकॉटेड बाय ऑल द पार्टीज़। ओके, ऑल द पार्टीज़, कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट किया एंड मुस्लिम लीग ने भी इसको बॉयकॉट किया। इट वॉज बॉयकॉटेड बाय ऑल द पार्टीज़। वाई? बिकॉज ऑल 7 members ऑफ इट वर ब्रिटिशर्स। जितने भी इसमें 7 members थे दे वर ऑल ब्रिटिशर्स। इंडिया का इसमें, हालांकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडिया में जो गवर्नेंस प्रोसेस है और जो इंडिया की प्रोग्रेस है उसको देखने के लिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया गया था। बट इसमें एक भी इंडियन नहीं था, तो दैट्स वाई इट वॉज बॉयकॉटेड बाय ऑल द पार्टीज। ओके, और पूरी जगह, पूरी कंट्री में जो है साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, दिस काइंड ऑफ स्लोगन यहाँ वहाँ पे जो इस तरह के नारे लगा दिए गए। इन वन सच डेमोन्स्ट्रेशन एट लाहौर, लाला लाजपत राय हैज़ रिसीव्ड लाठी ब्लोज ऑन हिज हेड। इसमें क्या हुआ, लाहौर में भी इसी तरह के साइमन गो बैक ऐसे नारे चल रहे थे, ऐसे दंगे चल रहे थे। उस दौरान जो है लाला लाजपत राय को जो है सर में एक लाठी से जो है मार दिया गया एंड लेटर ही वॉज डाइड इन 1928। दिस वॉज साइमन कमीशन, जिसको कि इंडिया में बुरी तरह से, जिसका रिजेक्शन किया गया, उसको उसकी रिकमेंडेशन थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेहरू, व्हेन वी टॉक अबाउट नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928, under this, a committee was appointed under the chairmanship of Motilal Nehru to draft constitutional framework for country। कि कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा उसका एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी को अपॉइंट किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। और इसने जो रिपोर्ट अपनी दी वो 1928 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और उस कमेटी की जो मेजर रिकमेंडेशन थी वो क्या थी, ये डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो हमने अभी पढ़ा कि मुस्लिम्स मुस्लिम को इलेक्ट करेंगे, सिक्स को इलेक्ट करेंगे, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको ये रिजेक्ट किया, ये जॉइंट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की इन्होंने बात की कि लैंग्वेज के बेसिस पे प्रोविंसेस को डिमार्केट करना। एंड 19 फंडामेंटल राइट्स की ये बात कर रहे हैं जिसमें इक्वलिटी, लिबर्टी, दीज काइंड ऑफ राइट्स थे। एंड ये फुल प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स,
मुस्लिम वर इन माइनॉरिटी, तो कहीं ना कहीं ये उनके कल्चर और रिलीजियस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे। एंड कहीं ना कहीं this report was also deals with the provision of secularism, because it talked about complete disassociation of state from religion, कि स्टेट का जो है रिलीजन से कोई भी लेना देना नहीं होगा, सभी को अपना रिलीजियस राइट्स होंगे और स्टेट का कोई स्पेसिफिक स्टेट रिलीजन नहीं होगा। सभी अपने रिलीजन को अपने सभी किसी भी रिलीजन को अपनी मतलब उनके पास फ्रीडम होगी। ओके, सो इट little bit talked about secularism, which we have which this provision is also available in our preamble, secularism. Okay, so now this was Nehru report of 1928. Let's talk about communal award. Okay, what was this communal award? So in 1932, Ramsay MacDonald, who was British Prime Minister, he introduced a scheme of representation of minorities, which came to be known as communal award. माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड एक स्कीम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस अवार्ड के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत क्या था? द अवार्ड नॉट ओनली कॉन्टिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड इट टू डिप्रेस्ड एंड शेड्यूल क्लासेस। एक ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात सिर्फ मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन के लिए ही नहीं करता, बल्कि फर्दर इट एक्सटेंडेड इट टू डिप्रेस्ड क्लासेस ऑल्सो। सो इस वजह से क्या है, ये तो बात हो गई कि इंडियंस को जो है बिल्कुल डिवाइड कर दिया किया जा रहा था, कि पर्टिकुलर उनमें कम्युनलिज्म की फीलिंग्स को डेवलप किया जाता था, कि पर्टिकुलरली अपनी कम्युनिटी के लिए, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, जिस रिलीजन से, जिस कास्ट से, बस उसी तक जो है उनको क्या कहते हैं, उसी तक उनको सिर्फ लिमिट कर दिया गया कि नाउ यू विल अपॉइंट मेंबर्स। ओके, लेट मी पुट इन दिस वे कि डिप्रेस्ड क्लासेस विल अपॉइंट डिप्रेस्ड क्लासेस, कोई डिप्रेस्ड क्लास को सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास अपॉइंट करेगी, मुस्लिम को जो है मुस्लिम अपॉइंट करेगी, सिक्स को सिक्स अपॉइंट करेगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो कंट्री जो है डिवाइड हो रही थी ऑन द कम्युनल बेसिस पे। ओके, तो गांधी वॉज डिस्ट्रेस ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। गांधी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिस वजह से वो अपना फास्ट करते हैं। एट द टाइम ही वॉज इन यरवादा जेल इन पूना, और वो फास्ट पे चले जाते हैं because he want to get the award modified. So at last there was a agreement between अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी कि इसके थ्रू उन्होंने वो ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, कम्युनल इलेक्टोरेट था, सेपरेट इलेक्टोरेट था, इसको जो है रिजेक्ट किया। एंड एक एग्रीमेंट हेल्ड हुआ, दैट एग्रीमेंट वाज नोन एज पूना पैक्ट। ओके, पूना पैक्ट, इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, इट रिटेन द जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम। अब जो है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की जगह इट रिटेन द हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम एंड गिव रिजर्व सीट्स टू डिप्रेस्ड क्लासेस। रिजर्वेशन को जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। अब सम सीट्स जो है रिजर्व कर दी गई डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट किया गया। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, लेट्स रिवाइज। We have talked about Indian Council Act of 1909, which also known as Morley Minto Reform. Morley was at that time Secretary of State and Lord Minto was Viceroy of India. This act increased the size of Legislative Council both at central as well as provincial level. Central Legislative Council की membership को बढ़ाकर 60 कर दिया गया, earlier it was 16. And this act for the first time allowed Indians to enter into the executive council of viceroy and governors, and Satyendra Prasad Sinha became the first Indian who joined the viceroy's executive council. This act introduced the communal representation for Muslims
and Lord Minto came to be known as father of communal electorate. Then we have talked about Government of India Act 1919, which also known as Montagu-Chelmsford reforms, and this act demarcate and separate the central and provincial subjects, and provincial subjects further divided into two parts: transfer subjects and reserve subjects. And this dual system known as diarchy, it introduced for the first time bicameralism and direct election in the country, and extended the principle of communal representation to for Muslim, Sikhs, फॉर मुस्लिम के लिए तो पहले इंट्रोड्यूस किया कर दिया गया था. इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर सिक्स इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस. इट granted franchises to a limited number, and it for the first time talked about the establishment of public service commission, which was later set up in 1926 for the recruiting of civil servants. And it for the first time it separate the provincial budget from the central budget. And then we have talked about Simon Commission 1927. It was a body of 7 members. All 7 members were Britishers. That's why it was boycotted by all the parties in India. Then we have talked about Nehru Report. Nehru Report major recommendation. Then we have talked about Communal Award of 1932, जिसमें कि सेपरेट इलेक्ट्रेट को रिजेक्ट किया गया, एंड इट रिटेन द हिंदू जॉइंट इलेक्ट्रेट एंड गिव रिजर्व सीट्स फॉर depressed classes. That's all for today. Guys, please like, share and subscribe. Thank you.